Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. And you all know and you have heard about Sagarmala project. So do you know about Sagarmala? The Indian port play a primary contribution role in the fast-growing economy because 95% of the merchandise trades passes through the Indian seaports. However, as compared to foreign ports, Indian ports contribute and continue to trail behind in a number of areas. In order to address all the problems faced by Indian ports, the Sagarmala project has been launched. And if we talk about Sagarmala project, and इसका मतलब हुआ गार्लैंड यानी कि माला, मोतियों की माला. इनिशियली जो ये बात हुई थी 2003 में स्टार्ट हुई थी, बट जो इसका मेन अट्रैक्शन इट वाज स्टार्टेड एंड रीगेन्ड अबाउट द थॉट्स दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2014. उसके बाद आता है कुछ इंप्रूवमेंट्स एंड इसका जो मेन मोटिव था, it helps to improve the foster business and eventually the economy of India. It boosted the Indian economy and global supply chain and improved its reputation at the global level. उसके बाद मेनली सागरमाला प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट का जो एरिया है 7,500 किलोमीटर का है. सो द सागरमाला प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव बाय द शिपिंग मिनिस्ट्री टू यूटिलाइज इंडिया 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन एंड एडवांटेजियस लोकेशन इन द इंडियन ओशन रीजन. बिकॉज इंडिया का जो नाम पड़ा और ऐसा कोई सा भी आपने देखा नहीं होगा जो समुद्र है उसकी तटरेखा. It is a port-led developed initiative that aims to enhance infrastructure growth, which will improve logistic competitiveness, increase industrialization and job creation, and ultimately support the growth of the coastal economy as a whole. क्योंकि जो इंडियन कोस्टल रीजन है वो एक तो 7,500 का जो एरिया है कोस्टल लाइन से, इफ वी आर ट्रेडिंग विद अनदर कंट्रीज, क्योंकि इंडियन ओशन में सबसे ज्यादा डोमिनेंस इंडिया का ही है, उसकी वजह से ट्रेड में क्योंकि फेयर जो होता है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है विच इज वेरी लो थ्रू द पोर्ट्स एंड इज स्ट्राइव्स टू इंप्रूव कनेक्शन विद मेजर इकोनॉमिक सेंटर्स एंड इकोनॉमिक कंट्रीज बियॉन्ड बाय एक्सपेंडिंग रेल, inland water, coastal and road services. It also promotes the optimal model split and developed access to new growth zones. And if we talk about what is the vision of Sagarmala project, so thoroughly, if we talk about the vision of Sagarmala project, first of all, it is reducing the cost of transportation domestic cargo through optimizing model mix. Second one, optimizing time and cost of EXIM container movement, which is very smooth and from one place to another, it is very easy. Apart from this, lowering logistic cost of bulk commodities by local future industrial capacities near the coast. Improving export competitiveness by developing port proximate discrete manufacturing clusters. So it was all about like 4 important vision which is important to reduce the logistics cost of EXIM and domestic trade with minimal infrastructure investment. Because port line तो आपके पास मतलब आप अगर सी पे हो और कोस्टल लाइन है, पोर्ट्स हैं आपके पास, so you can just improve the infrastructure coastal lines and then you can increase your trade, you can increase the economy and it will help us to improve as a nation, as a world economy and एज हमारी परचेजिंग पैरिटी में हम 3rd पोजीशन पे हैं एंड इकोनॉमी जो जीडीपी में है या ग्रोथ में कह सकते हो तो 7th पोजीशन पे हैं, जो कि वेरी सून वी आर गोइंग टू इंप्रूव आवर रैंक एंड वेरी सून वी विल इंप्रूव फॉर श्योर. सो विजन एंड मिशन की अगर बात करें, उसके बाद जो कुछ और इनिशिएटिव्स हैं और उसके बाद जो इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं. सो क्योंकि एक्सिम कंटेनर्स एंड मेनली जो रिडक्शन होता है वो मेनली कॉस्टिंग पे ही डिपेंड करता है. So if we talk about pillars, so port-led development, first of all, port modernization. Second one is port connectivity. Third one is port-led industrialization. And fourth is coastal community development. If we talk about port modernization, capacity augmentation, new port efficiency improvement. So 2 things are there. क्योंकि अगर आप capacity augmentation मतलब कि वहाँ capacity वहाँ खड़े होने की जो जगह है शिप्स की, उनको आपको जो लोडिंग है अनलोडिंग है वो कराना, उसके बाद जितने भी न्यू पोर्ट्स हैं उनको डेवलपमेंट करना, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, क्वालिटी को मेंटेन करना, लेबर वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड कराना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग, पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करते हैं. सो न्यू रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा रेलवे से अगर पोर्ट्स के जरिए जहाँ पे अनलोडिंग हो रही है उसके बाद अगर डायरेक्टली रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन से चीजें पहुंचाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा. सिमिलरली विद द रेलवे एज वेल, upgrading of road and railway, coastal shipping and inland water transportation and logistic parks. These are very very important things which is giving the edge to the improvement of the Sagarmala project. Third thing is port-led industrialization and industrial cluster, coastal employment zones and maritime cluster, smart industrial ports and cities, port-based ऐसी zones, special economic zone, इनका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आपने देखा होगा कि पोर्ट सिटीज डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे सपोज करो कि सिटी डेवलप किया आपने पोर्ट एरिया के थोड़ा सा दूर में और वहाँ से जाके कनेक्टिविटी है, वहाँ से दूसरी सपोज जैसे तमिलनाडु से आपको यूपी में लेके आना है सामान तो इजीली लेके आ पाओगे आप. दूसरी चीज ये होगी कि कोस्टल रीजन से अगर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा उस रीजन में और जितनी भी वल्नरेबिलिटी होगी और जितनी भी पुअर स्टेट्स हैं जो कि कैलेमिटीज की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी कम हो जाएगा. चौथी चीज आती है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कोस्टल टूरिज्म एंड उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग हार्बर्स एंड फिशिंग प्रोसेसिंग सेंटर्स, उनको डेवलप किया जा सकता है उस एरिया में, क्योंकि फिशिंग वगैरह भी ईजी है वहाँ पे और इजीली जो है ये चीज आप अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है और इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो. और सिमिलरली अगर ये जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो जाएगी तो एक्सपोर्ट करना भी बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा विद लो कॉस्ट. अब बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की. उससे पहले जितने भी हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में द प्रोग्राम वाज क्रिएटेड विद द प्लेटफॉर्म एंड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द सागरमाला प्रोजेक्ट Sagartal Samriddhi Yojana during the release of Maritime Indian Vision 2013 March 2021 and MOPSW formulated this detailed project to address challenges in coastal areas of the nation. So the Sagar
that Samriddhi Yojana has identified a total of 1049 projects with an estimated cost of 3,62,229 crores. And this amount, अगर इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो आप बना रहे हो, उसकी जो भी कॉस्टिंग है, उसका जो भी विजन है, लॉन्ग टर्म में आप सोच रहे हो, दैट इज प्रीटी गुड एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट. उसके साथ साथ 4 कीज भी हैं इसकी, जैसे कि 4 कीज आर देयर, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कोस्टल टूरिज्म, कोस्टल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. सो इन चारों के बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में बात हो चुकी है. उसके बाद जो है मेनली इस प्रोजेक्ट की जो अगर जो डिटेलिंग की बात करते हैं, सो सागरमाला कुड बूस्ट इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू USD 110 बिलियन बाय 2025, विच इज अ ह्यूज अमाउंट. और मेनली जो यूनियन कैबिनेट ने 2015 में जो इसका मेन नेम था होलिस्टिक पोर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन थ्रू मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन, जिसकी वजह से जो भी कॉस्टिंग वगैरह रिड्यूस हो रही है. और 4 पिलर्स मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ. तो उसके जो कंपोनेंट्स थे उसमें मोनेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिव इनहेंसमेंट होना चाहिए, लिंकिंग होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज की, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो कोस्टल शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन या इम्पीटस मूवमेंट जितने भी कार्गोस के हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, और कोस्टल जितने भी वाटरवेज हैं वो मॉडर्न होना चाहिए और उसका मोड बहुत एकदम सही तरीके से अरेंज होना चाहिए. अब हम बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करी गई है. So the program was created with platform for collaborating with federal, state and municipal authorities and was intended to be executed along the lines of cooperative federalism. यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अप्रोच प्राइमरीली यूज करनी है एंड कैरी आउट द प्रोजेक्ट्स. सबसे पहले जो है द नेशनल सागरमाला एपेक्स कमिटी, इसमें मेनली जो है चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग. उसके कुछ और इनिशिएटिव जितने भी और लोग हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ दैट. सो इट ऑल्सो कंप्राइजेज cabinet ministers from other ministers with stake in the program and the chief minister of ports, ministers of the maritime states, यानी कि जितना भी शिपिंग मिनिस्ट्री से जो ऑफिशियल्स होंगे वो रिलेटेड होंगे. तीसरी चीज आती है नेशनल सागरमाला कमेटी, नेशनल सागरमाला कमेटी एंड सागरमाला कोऑर्डिनेशन स्टीयरिंग. सो इट इज चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इट ऑल्सो कंप्राइजेस स्टेक होल्डर्स, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड मैरीटाइम स्टेट चीफ सेक्रेटरीज. सो ये जो है मेनली एपेक्स बॉडीज होंगी. उसके बाद आती है स्टेट सागरमाला कमेटी एंड दीज आर चेयर्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट चीफ मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स. सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी की अगर हम बात करते हैं, SDC, which was set up under the Companies Act 2013, comes under the administrative control of the Minister of Shipping, and it provides equity support to the project's specific purpose and special purpose vehicles (SPVs) and founding support of the residual projects under the Sagarmala project. The Sagarmala Development Company would identify port-led development project and assist project SPVs in project development and structuring activities, bidding out projects of private sector of participation, putting suitable risk management measures in place for strategic project and cutting across multiple states, region and obtaining requisite approval and cleanliness and clearance. So why in ports-led development? And crucial for India because इंडिया का जो पोर्ट लाइन है या कोस्टल लाइन है 7,500 किलोमीटर पूरा जो है कवर हो जाएगा. दूसरी चीज सिचुएटेड अलॉन्ग द इंपोर्ट ग्लोबल ट्रेड रूट्स इन द इंडियन ओशन. हाउएवर द कैपेसिटी इशू and lack of modern facilities of Indian ports significantly extend the time it takes to carry products into and out of the nation, which has limited India's contribution to global commerce. And creating inland canals out of rivers can also reduce domestic logistic expenses. By 2025, Sagarmala may increase India's exports of goods. It means like 110 billion and provide an estimated 10 million new jobs for 4 million in direct employment. Sagarmala project एक तो logistic main ports development 5 to 6% जो expenses होंगे वो reduce हो जाएंगे additionally, और जो भी इंडिया के जो भी development है, infrastructural development है, वो improve हो जाएगा. तीसरी चीज आती है सागरमाला परियोजना कैन इंप्रूव मोर देन 1 million पीपल विद असिस्टेंस ऑफ द फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नियर पोर्ट्स एंड बीचेस, जो जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटी वहाँ की कम हो जाएगी, लाइफ स्टाइल और जो डेवलपमेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जाएगा. द फंडिंग एड इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल कम्युनिटीज क्लोज टू पोर्ट्स और बीचेस, एडिशनली मोर एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट चॉइस विल बूस्ट टूरिज्म एट दीज important locations. Enhance port connectivity and infrastructure will increase marine security. Furthermore, China's maritime Silk Road map is significantly important and China has enduring difficulties. India must thus have a hold and linking between ports and can permanently fix such problems. And having inland waterways will help encourage domestic logistics and reduction of the cost, which is very important. And on the other side, apart from the turnaround time, the last mile connectivity is also an issue as it is necessary to ensure the easy movement of the cargo from one place to the another, and it participates 6%, which is much less than the other countries like China and USA, क्योंकि waterways का जो reduction है वो भी काफी कम हो जाएगा, which will improve the economy as well. And the coastal development, Government of India under Sagarmala project, there are like 72 districts close to the shore, and about 18% of the Indias are said to reside. Furthermore, 12% of the population of mainland India's resides in these districts. And Sagarmala project, Government of India is implementing, including a coastal line improvement like fisheries, maritime tourism and skill development for the locals. Additionally, a significant to boost employment, prospect of economic growth in the expansion of the tourism and curious for the tourism. फिशरी बिजनेस भी काफी इंप्रूवमेंट होगा, और टूरिज्म में कोस्टल लाइन जितना भी एरियाज है और जितने भी 21 इंडियन कोस्टल रीजन है काफी इंपॉर्टेंट, और जिसमें जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड गोल्स दैट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर अचीविंग एंड विच विल गिव, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रीजन जैसे द्वारका है, उसके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, गैलरीज हैं, वो और चाहे हैंडलूम हेरिटेज हो वो दिखाना, एंड इट विल इंप्रूव द टूरिज्म एंड स्वदेशी जितने भी
चीज़ें हैं आप दिखा रहे हो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, उससे टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प भी मिलती है और टूरिज्म इंप्रूव भी होता है। जैसे आपने सूरजकुंड ट्रेड क्राफ्ट फेयर देखा होगा, इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है ये। सो उसके बाद आता है कम्युनिटी स्किल डेवलपमेंट, एंड दैट इज मिनिस्ट्री adopted an integrated strategy as part of the Sagarmala scheme to raise the standard of the living for everyone who lives close to the shore. People are giving instructions and skill development so they can make a sufficient living, and efficiently would be increasing by the training, so they are rapidly assist Sagarmala's development initiative. कुछ challenges हैं इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी अच्छी बातें करें बट challenges भी काफी ज्यादा हैं। सबसे पहले तो ICRA क्लेम करता है प्रोग्राम सफिशिएंट फॉर लैक ऑफ टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए मोबिलाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, विच इज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बहुत सारी स्कैर्सिटीज है इंडिया में, तो उसको दूर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग भूखे मरते हैं, ड्रॉट हो जाता है, कहीं पे फ्लड आ जाती है, तो वो सारी चीजें इधर की तरफ ध्यान कहीं ना कहीं हट जाता है। सर्टेनली कुछ प्लेसेज हैव बीन अपोज्ड बाय द लोकल फिशिंग कम्युनिटीज, एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, एनजीओज बोलता है कि इस तरीके के जो डेवलपमेंट है उससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद कुछ और कंसर्न आते हैं, जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट ने हॉल्ट किया था कारवा पोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन था, फिशरमैन नेबरहुड जितने भी हैं वो सारे उनका कंसर्न होता है सागरमाला प्रोजेक्ट में। और भी जैसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, दिस सीजन तो वी कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफाइज एट द एंड ऑफ 2018, हाउएवर इट वाज एक्सट्रीमली रिस्की फॉर द डेलिकेट कोस्टल इकोनॉमी इकोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे जो है डिसरप्ट भी हो सकती है, जो लाइफ है मरीन इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा डिसरप्ट हो सकता है। उसके बाद है दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट सागरमाला एंड भारतमाला वर designated as strategic project hands free from requirement of the CRZ. The suggested that land from the environmentally delicate CRZI zone can be recovered from highways developed there, and additionally they have increased the Sagarmala project hastened coast erosion and increased pollution, क्योंकि आपने इंडस्ट्रियल जहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन होगा, डस्ट पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरा जो है इकोसिस्टम, जो मरीन इकोसिस्टम है वो डेवलप हो सकता है। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से जितने भी जो ब्लूप्रिंट था 2021 तक का जो मैरीटाइम विजन था वो भी डिस्टर्ब हुआ, वो भी जो है लेट हुआ। सो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। द प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक कोल, आयरन और सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा विल डिक्रीजिंग अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ देयर इज ग्रेटर इंटरकनेक्शन फॉर द कार्गोज ट्रांसपोर्टेड ओवर इनलैंड वाटरवेज। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें तो आपको चाहिए, कॉस्टिंग भी चाहिए उसके लिए और लेबर भी चाहिए। ऑन द अदर साइड, टर्न अराउंड टाइम एट अ प्राइमरी पोर्ट फॉर इंडिया इज 2.5 days. दिस एक्सीड्स बाय अ गैप ऑफ 24 hours कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज टाइम ऑफ 1 to 1.5 days, जो कि मुश्किल है, क्योंकि अगर आप टाइम से सामान नहीं पहुंचा पा रहे तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और भी सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो डिलीवरी करना, जो भी प्रोमिसेस होते हैं वो सारे फेल कर जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की, क्योंकि सागरमाला प्रोजेक्ट जो है इंटेंसिव प्रोजेक्ट है एंड एफिशिएंट पोर्ट ऑपरेशनल coastal communities development have the potential to dramatically increase India's GDP. It has already given residents of 72 districts along the coastal areas growth, jobs, essentials of the life, and by 2035 it is anticipated and all Sagarmala project objectives would have been accomplished, and the government has been incredibly successful in reaching its goal. Thus, for thanks to the programs, quick daily programs, and we have great faith in this capacity and strength of power. So it was all about Sagarmala project and the conclusion which I already mentioned. I hope things are clear to you. और इसकी जो भी headlines हैं वो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो चीज़ें मैंने easy समझाने की कोशिश करी हैं। ऑल कुछ चीज़ें हैं इसमें कि आपको थोड़ा 2 बार सुनना पड़ेगा अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, एंड थोड़ा सा जो हेडलाइंस है उसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, बिकॉज हिंदी में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा उसको कन्वर्ट करके देना। बट हाँ, ये है कि आप जो है वीडियो देख के चीज़ें समझ सकते हो और रिसोर्सेज आपको इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से ले सकते हो। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सागरमाला प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये मेंस के चांसेस हैं आने के, और उसके अलावा कितने स्टेट्स वगैरह से गुजर रहा है ये, तो ये प्री में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आई थिंक ये सफाइस करता है हमारी रिक्वायरमेंट को आंसर राइटिंग की। सो टिल देन आप अच्छे से स्टडी करो एंड टेक केयर गाइस। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। टिल देन गुड नाइट, थैंक यू सो मच।